Good morning, student. Once again, in the class of the BSc third year zoology subject, topic is cloning vector, which related concerned topic of to the in the genetic engineering. So, genetic engineering process, this is the very mandatory for that to the numbers of the tools which are one to that and to the use different kinds of the tools is that to the enzymes, foreign DNA, vector DNA or the cloning vector, and the cloning vehicle is also called, and linkers. So these kinds of the tools which are which have and that to the perform to the process is the recombinant DNA technology or the genetic engineering. So this is the very important because this is the, they are the presence of to the cloning vehicle to join to the foreign DNA which have to the capacity to going to the cloning in the host cell and to produce to the copies of to the foreign DNA. So that this is the very important, and I was mentioned that into the previous lectures to the some of the cloning vehicles or the vectors is found into the nature, and that is the usually by the scientist the use in the cloning vector as a plasmid. Plasmid is used as a cloning vector in the genetic engineering process because this is the found in the Escherichia coli, and which join the foreign DNA of the tissue and DNA up to the animals or the tissues after to the dissolving process, and which capability to carry them and introduce into the host cell for that to the for forming to the clone, which use for the particular purposes in the different fields in the genetic therapy, agriculture, recombinant plants, animals, transgenic plant, transgenic animal, food processing, different aspect type of the medicine, hydrocarbons, environmental safety, medicines, all the other things which are in the process. So this is the very important, is the one of the tools in the process of the genetic engineering. So that we are go now, what is the cloning? A vector is a small DNA molecule. A vector is a small DNA molecule. DNA molecules capable of self-replication, capable of self-replication, capable of self-replication, and use as a carrier of DNA and use as a carrier of DNA, use of carrier of DNA, fragment inserted into it for cloning, fragment inserted into it for cloning. This is the definition of the cloning vector or vehicle, because we are just try to understand what about to the vector. A vector is a small DNA molecule.
small DNA molecule. As you mentioned into the previous lecture, that is the which capable of the replication and which are have to the also replication sites. For that to the replication to the vector is a small DNA molecules, just like to the plasmid, bacteriophage, phagamate, phosmid, cosmid, and yeast or as well. A vector is a small DNA molecule capable, which are having to the capacity or the capability for that to the doing some of the important work, capable of self-replication, which are going into the autonomous. This is the capability for that in the process of the replication is the autonomous and use as the carrier of DNA. DNA which are using DNA fragment used as a carrier which inserted into the it for the cloning. In the process of the genetic engineering, that is the vector is a used as a tools of the genetic engineering. These are the small DNA fragment which are have to the capability for to the carry of to the DNA fragment and which are inserted into the host for that to the cloning and which are used into the different kinds of the fields. So that is this is the very important. So that to the some of the special features are the characters of to the characteristic of the good vector or the good vector which are the header. So we know that what is the characters of the cloning vector. First is that to the should be able to replicate autonomously. रिप्लिकेट तो आज के चैप्टर दूसरा जो चैप्टर है वो क्लोनिंग वेक्टर है, उसमें हम कैरेक्टर को आपको बता रहे हैं। तो पहला जो इसका कैरेक्टर है जो स्पेसिफिक गुण होना चाहिए कि वो क्या काम कर सकता है, क्या कैरी कर सकता है, किस चीज़ को वहाँ पे किस प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम बताते हैं आपको कि ये रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली करना चाहिए या फिर ऑटोनोमस स्वतः करते हैं। रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑटोनोमसली मतलब इसमें स्वतः रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए और स्वतः रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होगी तो ये मल्टीपल कॉपीज को क्या कर देंगे, जनरेट कर सकते हैं। कॉपीज को जनरेट करेंगे, किसको करेंगे, कॉपीज जो इन प्रति आकृति होगी तो इनकी कैपेबिलिटी होगी, ये स्वतः रूप से रेप्लिकेशन करेंगे तो कॉपी बनाने में इनकी क्षमता होगी। दूसरा जो है इसमें क्या होना चाहिए, दूसरा origin of replication which are have to the origin of the replication for that to the formation of and numbers of the copies that is the use into the genetic engineering process. Origin of replication, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्लाज्मिड होता है उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही होता है। उस प्रकार से जैसे आगे हम जब आर्टिफिशियल या फिर जो है कुछ नेचुरल होस्ट को लेते हैं, वेक्टर को लेते हैं तो उसमें एक से या दो से अधिक भी जो है रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन साइट्स पाई जाती हैं। अब इसके आधार पे हम आगे सकते हैं कि ये जो ये वेक्टर्स होते हैं ये इनकी साइज स्मॉल होनी चाहिए, स्मॉल साइज के होते हैं और स्मॉल साइज होगी तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर जो वेट होगा वो भी क्या होगा, कम होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा। तो इस हिसाब से ये जो है रेप्लिकेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, और अगर स्मॉल साइज का मतलब 10 kb किलो बेस पेयर बोला जाता है, यहाँ पे इनकी क्षमता होनी चाहिए। और ये क्या होते हैं, कीप ड्यूरिंग प्रोलिफरेशन एट प्रेजेंट डिफिकल्टी ड्यूरिंग द मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड फॉर द जीन क्लोनिंग। अब आगे चल के अब ये जब स्मॉल होंगे तो
अच्छे तरीके ईजिली जो है हम इनको क्या कर सकते हैं, ईजिली इनको प्योरीफाई एंड आइसोलेट कर सकते हैं, प्योरीफाइड एंड आइसोलेट कर सकते हैं। मतलब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस है वहाँ से अच्छे तरीके से वहाँ से इनका आइसोलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये लगातार जो है, अब चूंकि क्या है अब ये इस प्रकार से होने चाहिए कि बहुत अच्छे और कन्वीनियंट तरीके से ये किसी भी होस्ट में, जो इनका होस्ट है उसमें इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं, इंट्रोड्यूस्ड कराए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल होते हैं, इनकी साइज। तो हमने कहा कि ये होस्ट में इंट्रोड्यूस किए जाएं इस प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये इनकी साइज जो होती है वो स्मॉल होती है, और इस प्रकार से जो है ये गुण भी इनका होना चाहिए। अब जो है वेक्टर जो है, वेक्टर अगला जो स्टेप है, वेक्टर ऐसा होना चाहिए, वेक्टर शुड बी अफोर्ड टू द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन द होस्ट सेल। होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो अच्छे तरीके से अफोर्डेबल होना चाहिए, किसके द्वारा? क्लोनिंग वेक्टर के द्वारा। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो कि, अब जैसा मैंने कहा कि वेक्टर शुड हैव टू द यूनिक टारगेट साइट फॉर द मेनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट पे चलते हैं कि इनके पास जो है साइट होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, जो कि रिस्ट्रिक्शन साइट होगा तो मैंने जैसे कहा कि हर एक प्रकार के वेक्टर में जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती है वो अलग होती है, तो वो रिस्ट्रिक्शन साइट होगी तो वहाँ से ये रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है, रिस्ट्रिक्शन साइट होने का मतलब ये है कि रिस्ट्रिक्शन साइट होने से उसको जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा उस पॉइंट से, उस प्लेस से कट कर सकते हैं, तो ये भी गुण वहाँ पे होना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है मैंने कुछ क्वालिटीज़ की बात की, कैरेक्टर की बात की, जो कि क्लोनिंग वेक्टर में होना चाहिए। हम आपको 2-3 विशेष इसके जो समरी के रूप में हम आपको बता दें कि वेक्टर जो होगा, वेक्टर शुड हैव टू द क्वालिटी फॉर दैट टू द यूजिंग इन टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस विच फर्स्ट ऑफ ऑल their size is very small, the size should be very small। तो साइज क्या होनी चाहिए? बहुत स्मॉल होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट इज द रेप्लिकेशन ऑटोमेटिकली ऑटोनोमसली, एंड these are have to the replication site after this is the very important to injures into the host cell for the cloning process, and where are the going into the replication along with the foreign DNA, because this is the very important in the another, these carry to the foreign DNA, because these DNA which carried to the foreign DNA which come from to the any kinds of the tissues or the plant or the animals, what is the purpose is which are going on, so that is the join and to the introduce। तो ये कैरी करने की भी क्षमता होनी चाहिए। 2-3 पॉइंट विशेष, साइज में छोटा होना चाहिए, फॉरेन जो DNA है उसको कैरी करने की क्षमता होनी चाहिए, इंट्रोड्यूस होस्ट में सेल में इंट्रोड्यूस होने के बाद जो है यहाँ वहाँ पे रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने के साथ में वहाँ पे वो कॉपी को ज़्यादा से ज़्यादा बना सके। तो ये एक विशेष गुण है जो कि क्लोनिंग वेक्टर के रूप में दिखाई पड़ता है। तो हाँ, हम आज जो है क्लोनिंग वेक्टर के रूप में हम प्लाज्मिड वेक्टर की बात करेंगे। होते तो बहुत सारे हैं, जैसा मैंने बताया, प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, फाज्मिड है, फैगमिड है, कॉस्मिड है, ईस्ट है, तो इस ईस्ट वेक्टर है। तो अलग अलग प्रकार के जो है वेक्टर्स पाए जाते हैं, लेकिन हम आज एक वेक्टर की बात करेंगे जो बहुत ही फेमस और बहुत ही यूजफुल है जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में, जो जहाँ
जो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट होते हैं वो इसी वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे इजीली तरीके से इसको हम आइसोलेट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल में। कैसे होता है इस प्रोसेस को हम बताते हैं, और उसके आधार पे एक वेक्टर का और प्लाज्मिड के रूप में क्या गुण होगा उसको देखते हैं। अब जबकि मैंने कहा कि एक प्लाज्मिड वेक्टर वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड को हम देखेंगे, तो प्लाज्मिड वेक्टर को देखते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है, पहले समझते हैं व्हाट अबाउट टू द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इस चीज़ को देखते हैं। प्लाज्मिड आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ replicating double stranded circular DNA which are found in the bacterial cell in addition of the bacterial DNA which are ranging about to their size is to the 1/10। तो मैंने क्या बोला कि ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रिप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड DNA molecule which are found in the bacterial cell in addition। तो आज के चैप्टर में जो प्लाज्मिड वेक्टर है, मैंने कहा कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रिप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल होता है, जो कि बैक्टीरियल जो सेल होता है जो प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं, उसमें वो जो एस्क्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया होता है उसके DNA के अलावा ये सर्कुलर DNA के रूप में वहाँ पे होता है। ये नॉन एसेंशियल या ये कह सकते हैं कि ये जो बैक्टीरियल DNA के से एक्सेप्ट ये पाया जाता है, इसके ग्रोथ और लाइफ प्रोसेसेस में कोई रोल नहीं होता। देयर आर नो रोल ऑफ द ग्रोथ एंड टू द अदर वाइटल एक्टिविटीज। दीज आर हैव टू द as named extra chromosomal self replicating qualities which are have to the also double stranded DNA molecule। ये डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल इसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब जबकि यहाँ पे मैंने कहा ये इसका जो साइज होता है वो डाल्टन में नापा जाता है, 1×10⁶ जो रखा गया है, 2⁶ से लेके 200×10⁶ इतने साइज तक ये होता है। और जबकि ये जो है बैक्टीरियल सेल में आइदर फ्रीली और फाउंड इनटू द इंटीग्रेटेड फॉर्म, या तो ये फ्री रूप से एक पाया जाएगा या फिर बैक्टीरियल DNA के साथ में इंटीग्रेट होगा। जैसा मैंने बताया कि इसका कोई भी रोल इसके लाइफ साइकिल में नहीं होता, इसलिए ये यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। अब जैसा मैंने बताया कि 1 से अधिक या 1 से 100 तक की संख्या में जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। और ये जैसा I was mentioned into the previous lectures when are the going into the procedure of to the genetic engineering, that is during to the first process isolation of the desired gene, where the after that to the isolation of to the cloning vector. So at this time the extraction of to the plasmid vector as a vector for after that to the culture up to the bacterial cell. Identification of to the cloning vector
तो क्लोनिंग वेक्टर के रूप में इसका जो है आइसोलेशन किया जाता है, वहाँ से प्राप्त किया जाता है, और इसके पास जो है ये क्वालिटी होती है। मतलब मैंने जैसा कहा कि बैक्टीरियल डीएनए के अलावा ये पाया जाता है, तो इसलिए इसके पास रेप्लिकेटिंग कैपेबिलिटी होती है, रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है, और इसमें एक रेप्लिकेशन ओरिजिन होती है, वन रेप्लिकेशन ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसके माध्यम से ये रेप्लिकेशन मतलब जो है डुप्लीकेशन प्रोसेस करता है और अपनी कॉपी को बनाएगा, या फिर एज अ वेक्टर इसको यूज किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने कहा कि जो इसका जो इस्तेमाल है प्लाज्मिड का, जो ये प्लाज्मिड है, ये इसके पास 3 फैक्टर होते हैं। एक यफ फैक्टर होता है, दूसरा और फैक्टर होता है, तीसरा कॉल फैक्टर होता है। यफ फैक्टर फर्टिलिटी फैक्टर बोला जाता है, फर्टिलिटी फैक्टर होता है, फर्टिलिटी फैक्टर होता है। दूसरा आर फैक्टर के रूप में हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस फैक्टर के रूप में काम करता है, रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। और ये कोलिसिनेज जो होता है, जो प्रोटीन होता है, कोलिसिन्स के रूप में ये एज अ अब फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट होता है। तो हम एक करके बताते हैं व्हाट इज द फर्टिलिटी ड्यूरिंग टू द टाइम अप टू द फॉर्मेशन ऑफ द or genetic exchange, genetic recombination process which are done by the bacteria, where are the conjugation process is that takes place, that is with the help of the pillars forming to the bridge, conjugation bridge, and then to the these are the plasmid which are goes to the into the these are the plasmid which are goes to the another bacteria which are lack to the plasmid, so that to the when are the plasmid which contain to the bacteria is called to the F positive, this is the donor, and to the when the who's the bacteria, which kinds of the bacteria which are absent, which not have to the plasmid, that is called to the recipient, or to the F minus are the female bacteria. During to the process of the conjugation, that is the when the formation up to the conjugation bridge, that is the double stranded up to the chromosomal parts up to the DNA molecule, which are goes to the through the bridge into the another bacteria which is the type is the F minus, and that's to the convert into the F positive bacteria, so that to the fertility is explained it. And after that to the R is resistance in against to the different kinds of the environmental and to the infections in against to the bacteria. And third is the coding colicin, that's protein to the kill sensitivity. सेंसिटिविटी के लिए यूज किया जाता है ये कोलिसिन। तो तीनों प्रकार की ये प्रतिरोधक क्षमता या फिर एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए किया जाता है। अब मैंने कहा कि जब सिंगल कॉपी ऑफ द प्लाज्मिड रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है इसमें, तो अब इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और कैसे प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस, पिछले प्रोसेस में हमने लेक्चर में बताया भी था इसके बारे में, द विच अबाउट टू द which are the processes which apply for that to the extraction of to the plasmid as a vector. For in this process, when the lysozyme enzyme you use, then the extraction of to the bacterial genome, but द प्रोसेस ऑफ टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए। तो यहाँ पे ये जो इसका प्रोलिफरेशन होते रहता है, मतलब ये रेप्लिकेट करती रहती है, बैक्टीरिया जो है रेप्लिकेट करके अपनी कॉपीज़ को बनाती रहती है और जो है अपनी संख्या को बढ़ाती रहती है। लेकिन अगर इसमें क्लोरोफेनिकॉल जो अभिकर्मक जो है रिएजेंट के रूप में क्लोरोफेन
फेनिकॉल का यूज कर दिया जाए ड्यूरिंग टू द एक्सट्रैक्शन। जब इसको एज अ वेक्टर इस्तेमाल करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसमें पाया जाता है, तो इसको क्लोरोफेनिकॉल कर देंगे। तो ये जो बैक्टीरियल डीएनए होता है ये पूरी तरीके से अपना रेप्लिकेशन करना बंद कर देगी, क्लोज बंद, है ना, ये चेक हो जाएगी, रुक जाएगी। तो जैसे ही रेप्लिकेशन क्षमता इसकी रुकेगी तो जो ये प्लाज्मिड है ये रेप्लिकेशन ऑटोनोमसली करता है, मतलब ऑटोमेटिक अपने तरीके से स्वतः करता रहता है। तो ये तुरंत प्रोलिफरेशन प्रोसेस करने लगेगा, प्रोलिफरेशन प्रोसेस करेगा। तो प्रोलिफरेशन प्रोसेस करने लगेगा तो इसके नंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, और उस समय साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस सेल से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और एक्सट्रैक्ट करके प्लाज्मिड को ले लेते हैं। और इस चूँकि प्लाज्मिड में मैंने पहले ही बताया कि ये गुण होता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक साइट होती है, एक ही साइट ऑफ द ओरिजिन होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है जिसके आधार पे, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल एज अ वेक्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में किया जाता है। तो इस आधार पे आप समझ सकते हैं कि ये प्लाज्मिड यहाँ पे ये इन विट्रो कंडीशन में इस्तेमाल है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, रेप्लिकेशन की क्षमता रखता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। मैंने ये भी प्रोसेस बताया कि किस प्रकार से ये बैक्टीरियल जेनेटिक रिकम्बिनेशन प्रोसेस में भी भूमिका निभाता है, किस प्रकार से रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है और एक विशेष प्रकार की सेंसिटिविटी, या फिर मतलब कुल मिला के एंटीबायोटिक्स में जो है। तो ये चूंकि प्रोकैरियोटिक एनिमल्स है, बैक्टीरिया वहाँ पे पाया जाता है, और यहाँ से इसका इस्तेमाल इन विट्रो कंडीशन में किया जाता है। तो अब यहाँ से जो जब साइंटिस्ट के द्वारा ये जो प्लाज्मिड वेक्टर है इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया गया, तो 2-4-6 जबकि इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने की डिस्कवरी आगे बढ़ती गई, तो वैज्ञानिकों ने 2-4 प्लाज्मिड को मिला के कंस्ट्रक्टिव प्लाज्मिड बनाया है, कंस्ट्रक्टिव प्लाज्मिड का यूज किया गया है। और इस प्रकार से अलग अलग जो है प्लाज्मिड का यूज किया गया है। तो यहाँ पे PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर का फॉर्मेशन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे देखिए PBR 322। अब PBR क्या है, P का मतलब प्लाज्मिड होता है, और B और R जो है ये दो वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है, एक का नाम है बोलीवर, दूसरे का नाम है रोड्रिगेज। तो P मीन्स प्लाज्मिड, B मीन्स बोलीवर, R मीन्स रोड्रिग्यूज, रोड्रिग्यूज। ये दोनों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दोनों ने मिलके इस प्लाज्मिड का निर्माण किया जिसको 320। तो इसमें 3 से 4 जो है प्लाज्मिड को लेके, पार्ट्स को लेके आपस में साइड से जोड़ा गया है। और ये प्रक्रिया कैसे हुई है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे आपको। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो प्लाज्मिड जो है किस प्रकार से बनाया गया है। PUC8 प्लाज्मिड वेक्टर भी होता है। तो अगले चैप्टर में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो ये जो है इसके पास, ये चूंकि छोटा होता है, रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, साइज में छोटा होता है, कैपेबिलिटी होती है कि ये फॉरेन डीएनए को कंटेन करेगा, मतलब और ले जाके जो है इंजर्शन करने के बाद जो है कॉपीज़ का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार से ये इस टॉपिक में जो है हमने प्लाज्मिड और वेक्टर से संबंधित चीज़ों पे बात की। और अगले प्रोसेस में, अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक प्लाज्मिड वेक्टर को कैसे बनाया जाता है और किस प्रकार से वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में। तो बैक टू बैक जो लेक्चर में आपने बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इन सब चीज़ों को देखा, नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है कंस्ट्रक्टिव टाइप के जेनेटिक इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल
see the what is the reconstructive plasmid which are joined to the 3R4 plasmid and given to the name, and what is the work into the vitro conditions, so that to the this topic is very I hope this topic is very useful. Thank you. कितना हो 30 चला 58 29 30